Hello friends, so today we would be moving ahead in the chapter. Okay, काफ़ी सारी चीज़ें we have discussed about this chapter. The chapter is human reproduction. We have talked about the process of sperm formation, the process of egg formation. Okay, so today we would be talking about the process of fertilization. ठीक है, so आज fertilization के बारे में बात करेंगे and but obviously all know that fertilization requires the egg and the sperm. ठीक है, तो एग कैसे बनने वाला है वो अपन ने बात कर ली है, स्पर्म कैसे बनने वाला है वो अपन ने बात कर ली है. ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड कि व्हाट आर द अदर क्राइटेरिया रिक्वायर्ड. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. So before I start with this topic, there's some confusion regarding the terms spermatogenesis and there are confusions regarding the term spermatogenesis, then spermiogenesis and spermiation. ठीक है, spermatogenesis, spermiogenesis and the spermiation. So we need to know that कि spermatogenesis के अंदर ही spermiogenesis आता है. ठीक है, spermatogenesis के अंदर ही spermiogenesis आता है, but through the process of spermiogenesis a sperm is formed. ठीक है, यहां पे जो चीज बनती है इसे sperm कहा जाता है. ठीक है, और यहां पे जो चीज बनती है, the end product of spermatogenesis is spermatid. It is spermatid. And spermiation is a process in which the sperm is released from seminiferous tubules. क्योंकि ये जो भी प्रोसेस था spermatogenesis का, spermiogenesis का, that was taking place in the testes and to be more specific in the seminiferous tubules. ठीक है, तो जो sperm बन जाता है spermiogenesis के थ्रू, spermatid में differentiation हो जाता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है sperm में. ठीक है, then the sperm has to be taken out from the testes or the seminiferous tubules. Okay, so that process is known as spermiation. ठीक है, I hope this is clear कि यार spermatogenesis क्या है, spermiogenesis क्या है and spermiation क्या है. ठीक है, so थोड़ा और अगर इसको देखना हो तो I can talk about कि यार we started with, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो we started with spermatogonia. The spermatogonia undergoes divisions, mitotic and meiotic, and it results in the spermatid. The spermatid undergoes differentiation and forms a sperm. And sperm, when it is formed, they are taken out from the seminiferous tubules. That is known as spermiation. Formation of sperm is spermiogenesis, and formation of a spermatid is the spermatogenesis. This is all taking place in the seminiferous tubules. Okay, genetic count अगर देखना है अपन को, तो I can put it as this is going to be N, this is going to be N as well, and obviously this is going to be N. ठीक है, so I hope this is clear कि spermatogenesis क्या है और spermiogenesis क्या है. ठीक है, now और आगे देखना है, so we'll talk about the menstruation once again. Now if we are talking about fertilization, so the end product of fertilization is going to be a baby, कि बच्चे का formation होता है. So it's not like every time there's mating going on, okay, so the end product is going to be baby. Okay, every time when a person mates, that doesn't mean there's going to be fertilization. So to get the egg fertilized, there is a specific time period. To get the egg fertilized, there is a specific time period. Let's say sperm can survive in the female reproductive system for a minimum of 3 days. For the minimum of 3 days.
and for the maximum of 5 days. ठीक है. And if we talk about the age of the egg, कि egg कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है in the female system, so that is 24 hours. That is 24 hours. ठीक है. Getting the idea, sperm in the female system survives for 3 days minimum, maximum 5 days, and the egg that survives for 24 hours. So अपन बात करते हैं menstrual cycle की, तो we started from day 1 and we had 14 day पे ovulation होता है, इसकी बात हुई थी. We start with first day, then we had 14 day, and then we have the 28 day. ठीक है. So initially 5 days की अपन ने बात करी थी कि यार this is going to be the bleeding period, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा होगा, वेसल्स बाहर आ रहे होंगे, एग रप्चर हो गया होगा. सो 5 टू लेके 14 की जो बात करते हैं, 14 पे जो ओव्यूलेशन हो जाएगा, वी टर्म्ड इट एज द फॉलिकुलर फेज. ठीक है. तो यहाँ पे लेट्स से द एग इज बीइंग रिलीज्ड फॉर ऑन द 14 डे. ठीक है. 14 डे पे एग रिलीज हो रहा है एंड द एग कैन सर्वाइव फॉर 24 आवर्स. सो 24 आवर्स की मैं बात करता हूँ, मतलब इट कैन सर्वाइव, एक दिन की बात कर सकते हैं, इट कैन सर्वाइव फॉर लेट्स से 14th पे रिलीज हुआ तो 15 डे तक सर्वाइव कर सकता है. ठीक है. तो अगर स्पर्म अवेलेबल है उस टाइम पीरियड पे, देन ओनली द फर्टिलाइजेशन गोइंग टू टेक प्लेस. लेट्स से इफ द स्पर्म, इफ द कपल अंडरगोज मेटिंग ऑन द 6th डे. ठीक है. इफ द कपल अंडरगोज मेटिंग ऑन द 6th डे, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये तो 5 से ज्यादा दिन हो रहे हैं ना. मैक्सिमम 5 डेज सर्वाइव कर पा रहा है, तो 5 से ज्यादा दिन हो रहे हैं. सो देयर इज नो सर्वाइवल और देयर इज नो चांस ऑफ एग गेटिंग फर्टिलाइज्ड. बट लेट्स से इफ द कपल अंडरगोज मेटिंग ऑन द 9th डे. ठीक है. दे वांट टू हैव अ बेबी, दे वांट टू कंसीव अ बेबी, सो दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मेटिंग ऑन द 9th डे. सो 9th, सो दैट इज 10th, 11th, 13th, 14th, 15. ओके. तो 5 दिन का टाइम पीरियड आ गया है. सो देयर इज मोर चांसेस ऑफ गेटिंग द एग बीइंग गेटिंग फर्टिलाइज्ड if the couple mates on the 9th day. ठीक है. अगर if the couple mates on the let's say 20th day पे अगर मीटिंग करता है, ठीक है, so 20th day पे अगर मीटिंग कर रहा है, so there is no chance of getting fertilization because एग का लाइफ स्पेन कितना था, 24 आवर्स का लाइफ स्पेन था. एग 14 डे पे रिलीज हुआ है. ओके. सो 24 आवर्स लेट्स से आप 16 डे तक खींच सकते हो ज्यादा से ज्यादा. ओके. 16 डे के बाद तो एग सर्वाइव नहीं करने वाला है. सो देयर इज नो चांस ऑफ द एग गेटिंग फर्टिलाइज्ड एंड देयर इज नो चांस ऑफ कंसीविंग अ बेबी. ठीक है. सो दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड कि यार स्पर्म का मैक्सिमम 5 डेज है और एग का 24 डेज है. सो इफ द कपल वांट्स टू कंसीव, वांट्स टू हैव अ बेबी, सो मेटिंग का जो टाइम पीरियड होना चाहिए ओव्यूलेशन के आसपास होना चाहिए. ठीक है. जिस तरीके से द स्पर्म कैन फर्टिलाइज द एग. ठीक है. सो नाउ वन मोर थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज कि यार मैंने ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बताई है 28 डेज की बता रखी है. ठीक है. दिस इज अ स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मैं बात कर रहा हूं. बट इन सम पर्सन इट कुड बी लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट 30 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है. ओके. इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फॉर 30 डेज, सो उस टाइम पीरियड पे अगर पूछा जाता है कि यार ओव्यूलेशन कब होगा, 14 डे पे होगा? नो. अगर पूछा जाता है कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 30 डेज, तो ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होने वाला है? सो व्हाट वी नीड टू डू इज, ये जो फेज है 1 से लेके 14 वाला, ओके, दिस इज चेंजिंग. इट कैन डिफर, ये चेंज हो सकता है. ओके. इट कैन बी ऑन 13th. ओके. दिस फेज कीप्स ऑन चेंजिंग. बट दिस फेज ओव्यूलेशन के बाद का जो टाइम पीरियड होता है, ओके, मैंने बोला 14 डे पे ओव्यूलेशन हुआ, तो उसके बाद एग्जैक्टली 14 डेज के ही बाद क्या होने वाला है, नया मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होने वाला है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर 30 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो यू नीड टू काउंट, यहां से 14 डेज आपको काउंट करने. यू नीड टू काउंट 14 डेज फ्रॉम द रिवर्स. ठीक है. तो आप जब यहां से 14 डेज काउंट करते हो तो दैट गिव्स यू नंबर ऑफ लेट्स से 16 डेज. तो 16th डे पे ओव्यूलेशन होना चाहिए. ठीक है. उस तरीके से इफ आई टॉक अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फॉर 29 डेज. ओके. द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फॉर 29 डेज. तो आप 29 से रिवर्स में 14 गिन लो कितना हो रहा है. ओके. सो रिवर्स में आप जितना करोगे 14 होगा. दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर.
सो कोई भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि यार मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का 30 डेज का है या 31 का है या 28 का है या 29 का है, ओके आपको सिर्फ इतना करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल यू हैव टू काउंट इन रिवर्स 14, आपको 14 गिनना है रिवर्स में, you need to count reverse in 14, okay, so that would give you the day of ovulation, ठीक है, is it clear? लास्ट डे से 14th गिनना है आपको, you have to count 14 in reverse, 1 2 3 4 5 6, जिस डे पे 14th आएगा that would be your day of ovulation, ठीक है, is it clear? Okay, good, so let's move ahead, I hope this is clear, ठीक है. So now we'll talk about the process of fertilization. So as we all know that we have drawn the female reproductive system in the 10th standard. So I'll draw a rough diagram. Okay. I'm not drawing this part. Okay, I'll keep this part empty so that I can write down the details. Okay, we'll use this side. Okay, and these are the inner walls. Okay. So this is the diagram which we have drawn in the 10th standard. Okay, so I'm not putting down the detailings right now. Okay, the theory part is more important rather than the diagram at this point. Okay, so now what happens is, for the process of fertilization, there's a requirement of the sperm. Okay, so inside the female reproductive system, the sperm is deposited by the male. So this is not only the sperm. What goes inside the female reproductive system is actually semen. Okay, it's semen, not the sperm alone. So what is semen? Semen is sperm plus secretion of seminal vesicle, okay, and the prostate gland. It has the secretion from the seminal vesicle as well as the prostate gland. So altogether जो mixture बनता है, that is a semen. So not only the sperm is entering, there's a mixture of secretion of seminal vesicle as well as the prostate gland are entering inside the vagina. So this is the vagina. Okay? So it has been estimated that nearly about 300 million sperm enter the vagina. Okay? Now as soon as they enter, not 300 million sperms are going to survive. Okay, a lot of sperms are going to die because the pH in the vagina is acidic. Okay, so a lot of sperm is going to die. Okay, one more thing here is the cervix. Cervix generally is closed. Generally the cervix is going to be closed. It opens for a very few time period. तो जो sperm यहाँ पे बच गए हैं, okay, they have to pass through the cervix. Okay, so cervix से अगर निकल जाते हैं, then only they are allowed to enter the uterus. तो जैसे मैंने बताया गया, cervix तो majority time के लिए क्या रहता है, बंद रहता है. So chances of the sperm getting inside the cervix and entering the uterus is very very few. ठीक है, so चलो let's say there are 100,000 sperms enter हो गए. Okay, 100,000 sperm have entered through the cervix and they have reached the uterus. ठीक है, now uterus से अब कहाँ जाना है? Uterus से they need to go to the egg. Let's say there's an egg here. Okay, they need to go to the egg. So यूट्रस के अंदर there are a lot of cilia. Okay, यूट्रस के अंदर काफी सारे cilia होते हैं. Okay, यूट्रस के अंदर भी होते हैं and fallopian tube के अंदर भी होते हैं. ठीक है, and they are continuously moving like this in this direction. अगर sperm इस तरीके से आ रहा है, the sperm is going like this, they are beating in this direction. मतलब they are pushing the sperm backward. ठीक है, so here also a lot of sperm they would
they would get into the cilia, वो लोग फंस जाएंगे cilia के अंदर, they would not be able to pass or move ahead. ठीक है, so somewhat about 200 sperm reach the egg. Somewhat about 200 sperms only reach the egg. ठीक है, आप जस्ट इमेजिन करो 300 मिलियन से स्टार्ट किया था, then 100,000 sperms हुए, and now only 200 sperm reaches the egg. I'm saying reaches the egg. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार वो egg को fertilize करे. Only the one would be able to fertilize the egg. But egg के पास पहुंचने वाले there would be 200 sperms. ठीक है? So now when the sperm reaches the fallopian tube, this portion, ये जो ट्यूब यहां पे दिखा रखी है ना, this is known as the isthmus. This is the isthmus, this portion. Okay, and this portion is known as the ampulla. This portion is known as the ampulla. ठीक है, तो अब याद रखना कि यार fertilization के टाइम पे क्या होता है, when the sperms are moving and coming here, okay, the egg also has to come here. So let's say the egg is also moving and reaching that place. Egg भी move करके ये वाली जगह पे आ रहा है. This portion is the ampulla. ठीक है, और उसी के साथ वहां पे sperms भी आते हैं. ठीक है, सो इस पोर्शन पे, दिस पोर्शन जहां पे एम्प्यूला है और इस्थमस का एंड हो रहा है, लेट्स से दिस पोर्शन इज वेयर द एम्प्यूला स्टार्ट्स. ओके, दिस पोर्शन इज द एम्प्यूला. ओके, एंड दिस पोर्शन इज द इस्थमस. तो फर्टिलाइजेशन जो होता है टेक्स प्लेस इन एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन. ओके, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार पूछा जाता है स्पर्म का एग का फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है, स्पर्म कहां पे फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं. सो यू नीड टू से दे आर फर्टिलाइजिंग एट द जंक्शन विद द एम्प्यूला एंड्स एंड द इस्थमस स्टार्ट्स. ओके, एंड दैट इज नोन एज द एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन. ठीक है, समझ में आ रहा है? नॉट 200 स्पर्म सब जाके फर्टिलाइज कर लेगा, ऐसा नहीं है. ओके, बट one of them is going to fertilize and the fertilization is going to take place at the ampulla. Simple है, clear? So अगर एग यहां से रिलीज हुआ है तो याला एम्प्यूलरी स्टमक जंक्शन होगा. अगर एग याली ओवरी से रिलीज हुआ है तो यहां पे एम्प्यूलरी स्टमक जंक्शन होगा. ठीक है, so I'll rub it down and we'll talk ahead. Now, the sperms, they have to face a lot of hardships when they enter the female reproductive system. It's not an easy task that the sperms enter the vagina, then the cervix, and the uterus, and they reach towards the egg. A lot of, जैसे I mentioned कि यार pH यहाँ पे काफी acidic होता है, cervix बंद होता है, uterus के अंदर cilia होते हैं जिनका movement sperm के direction के opposite होता है, तो a lot of sperm that die. ठीक है, but यहाँ पे एक और important चीज होती है, that is known as capacitation. We have a process known as capacitation. और याद रखना है ये कैपेसिटेशन जो प्रोसेस होता है दैट इज टेकिंग प्लेस इन यूट्रस. इट इज टेकिंग प्लेस इन द यूट्रस, जहां पे सम चेंजेस आर मेड in the sperm so that it becomes hyperactive. It becomes hyperactive, and chances of fertilizing increases. Okay, so capacitation is a process that is not taking place in the males, it is taking place in the female, uterus में हो रहा है. Okay, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, स्पर्म के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं, उसकी मेम्ब्रेन में थोड़े बहुत चेंजेस किए जा रहे हैं, एंड इट इज बीन मेड हाइपर एक्टिव. सो अगर वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो चांसेस फर्टिलाइजेशन की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ओके, दैट्स व्हाट द बॉडी वांट्स कि फर्टिलाइजेशन हो जाए. ओके, सो द स्पर्म इज मेड हाइपर एक्टिव सो द फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेस. जैसे कि मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला,
जो अपन ने देखा टेल जो होती है इज इंक्रीज्ड, तो यार फ्लैजेला का मूवमेंट बढ़ जाएगा तो स्पर्म की स्पीड भी बढ़ जाएगी, और स्पर्म की स्पीड बढ़ जाएगी तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, सो नाउ काफी बारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर स्पर्म कोई दूसरे एनिमल का ले लेते हैं, एग अपना ह्यूमन का ले लेते हैं और फिर उनको फर्टिलाइज कराते हैं। ओके, इज इट पॉसिबल कि यार आप दूसरे एनिमल का स्पर्म ले लो, दूसरे एनिमल का एग ले लो और उनको आप फर्टिलाइज करा दो? इज इट पॉसिबल? स्पीसीज की बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज अगर आप देखते हो ना, सो इट डिफाइंस दैट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स। As we belong to the same species, that is a characteristic that we can reproduce among ourselves. If we are not able to reproduce among ourselves, that means we are not the species. We are not the same species. We are different species. So you cannot take a sperm of an elephant and put it into the egg of a lion or a tiger, okay, and get it reproduced. तो humans की अगर बात करते हैं, what makes this happen in the humans? How does it work? So जो egg होता है ये केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे कहा जाता है फर्टिलिजिन। दिस केमिकल इज टर्म्ड एज फर्टिलिजिन। और जो स्पर्म होता है इट इज सपोज टू प्रोड्यूस अ केमिकल नोन एज एंटी फर्टिलिजिन। The egg produces a chemical known as fertilizin and the sperm produce a chemical known as anti-fertilizin. और इन दोनों के बीच में there's a chemical reaction takes place. Chemical reaction occurs. Okay, and when the chemical reaction occurs between these two things, then only sperm can fuse with एग। अगर ये दोनों रिएक्ट नहीं कर पा रहे, नॉट एबल टू रिएक्ट, ओके, फर्टिलिजिन लेट्स से कोई दूसरा एनिमल का स्पर्म आपने डाल दिया तो उसके पास एंटी फर्टिलिजिन नहीं होगा, तो जब नहीं होगा तो वो फर्टिलिजिन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और जब वो फर्टिलिजिन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो जो एग है, दिस एग वुड नॉट रिसीव दैट sperm. Is it clear? So the egg produces a chemical fertilizin and the sperm produces a chemical anti-fertilizin. ठीक है, ये दोनों जब केमिकली रिएक्ट करेंगे then only sperm can fuse with the egg or the egg can allow the sperm to fuse. अगर ये दोनों रिएक्ट नहीं कर पा रहे, maybe there's some another chemical being produced by this sperm which is not belonging to the humans, तो उस केस में क्या होगा, the egg is not receptive to the sperm और fertilization आगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, So I did talk about कि fertilization कहाँ पे होने वाला है, that is going to take place in the ampullary isthmic junction. Okay, so now previously अपन बात कर रहे थे यार, जो egg होता है वो meiosis 1 करता है, फिर रुक जाता है, फिर meiosis 2 कब complete होता है, जब sperm आके उसको fertilize करेगा। ठीक है, so now what happens is, अब यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है कि किस तरीके से काम होने वाला है, you have to pay more attention. See, we had this egg. So we have this zona pellucida है, और zona pellucida के बाद क्या आता है, we have the perivitelline space था। ठीक है, और कोरोना रेडियाटा बनाया हुआ था, we had made कोरोना रेडियाटा भी बनाया था अपन ने। So this is a rough diagram because अपन ने अच्छा डायग्राम पहले बना रखा है। Okay, I don't want to waste time by repeating the diagrams again and again. ठीक है, तो ये न्यूक्लियस था अपने एग का, और यहाँ पे कहीं पे अपन ने पोलर बॉडी बनाया था, लेट्स से द पोलर बॉडी हैज डिग्रेडेड। ओके, सो वी हैव दिस कोरोना रेडियाटा, द ब्लू इज द जोना पेलुसिडा, एंड दिस इज द मेम्ब्रेन, दिस इज द पेरिविटलिन स्पेस, एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, सो नाउ ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, स्पर्म आ गया। अब स्पर्म जो है जैसे ही अंदर एंटर होता है,
So but obvious it has to rupture or it has to pass through the corona radiata. Okay, तो वो कोरोना रेडियाटा को डाइजेस्ट करता हुआ बढ़ता है जोना पेलुसिडा की तरफ. ओके, जोना पेलुसिडा के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, स्पर्म रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम था वो रिलीज होता है और वो क्या करता है, वो इस मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है. वो इस मेम्ब्रेन को डिग्रेड करता है. दैट इज जोना पेलुसिडा. ओके, नाउ द स्पर्म हैज रीच्ड, लेट्स से द स्पर्म हैज रीच्ड टू दिस पॉइंट नाउ. ओके, मतलब कोरोना रेडियाटा को उसने ब्रेक कर दिया, जोना पेलुसिडा को ब्रेक कर दिया और वो पहुंच गया ये पेरिविटलिन स्पेस में. ओके, तो जो पेरिविटलिन स्पेस है ना, यहां पे फ्लूइड होता है, यहां पे एक फ्लूइड होता है. एंड देन द हेड पार्ट it reaches the egg membrane. It reaches the egg membrane. Okay, the moment it reaches the egg membrane, there's a chemical reaction taking place. The moment, see, not all these sperms are going to come to this position. एक sperm आया तो जैसे ही वो इस कांटेक्ट में आता है इसकी egg membrane की, तो क्या होता है, there's a chemical reaction taking place. And what that chemical reaction does is it releases a chemical that hardens or that solidifies the zona pellucida. जैसे ही sperm reach करता है egg membrane की तरफ, there's a chemical reaction taking place. It releases a chemical which hardens the zona pellucida. पहले zona pellucida was soft enough. Okay, let's say जैसे कि कंक्रीट है, तो कंक्रीट अगर गीला है, सीमेंट गीला है, तो क्या होगा, आप उसके थ्रू पास हो सकते हो. बट द मोमेंट इट बिकम्स हार्ड, यू कैन नॉट पास थ्रू इट. तो उसी तरीके से जोना पेलुसिडा वाज लाइक सॉफ्ट एरिया, इट वाज पेनिट्रेबल. बट अभी क्या हो गया, बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जब ये स्पर्म टच हुआ यहां पे, तो ये जो सरफेस थी जोना पेलुसिडा क्या हो गई, हार्ड हो गई. अब जब ये हार्ड हो जाती है, तो अगर कोई स्पर्म पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, वो पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, बिकॉज द लेयर इज नॉट परमिएबल. नाउ लेट्स से आधा स्पर्म एंटर हो गया था. ओके, तो आधा स्पर्म अगर एंटर हो गया था, तो वो इधर आके फंस जाएगा, वो मेम्ब्रेन तक टच नहीं हो पाएगा. ठीक है. और दूसरी एक चीज ये भी होती है कि इट ऑल्सो रिलीजेस अ केमिकल विच कीप्स द अदर स्पर्म्स अवे. ठीक है. तो वेयर शुड आई राइट, लेट्स से केमिकल्स आर रिलीज्ड which solidify zona pellucida so that no sperm can enter, and chemicals are released which also keep other sperm away from the fertilized egg. क्योंकि एग फर्टिलाइज हो चुका है ना, क्योंकि स्पर्म एंटर हो चुका है. ठीक है. तो दो चीज होने वाली, जोना पेलुसिडा हार्डन हो जाएगा और केमिकल क्या करेगा, दूसरे स्पर्म्स को पेनिट्रेट होने से रोकेगा, या फिर दूसरे स्पर्म को एग से दूर रखेगा. पेनिट्रेट तो हो ही नहीं पाएगा बिकॉज जोना पेलुसिडा इज बिकम हार्ड. ठीक है. सो जब ये यहां पे टच हो जाता है ना ये मेम्ब्रेन के ऊपर, तो नाउ दिस मेम्ब्रेन इट इज नोन एज fertilization membrane. Now this membrane is known as the fertilization membrane. Just sperm आके उसको टच कर लेता है. ठीक है. Just go through the diagram once. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. पहले कोरोना रेडिएटा को क्लियर करेगा, फिर जोना पेलुसिडा को क्लियर करेगा थ्रू दैट एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द एक्रोसोम, हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम, एंड देन इट वुड टच द मेम्ब्रेन. ओके. जैसे ये मेम्ब्रेन को टच करेगा, तो मेम्ब्रेन क्या करेगी, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू केमिकल प्रोड्यूस करेगी, जो जोना पेलुसिडा को भी हार्ड कर देगा और उसी के साथ दूसरे स्पर्म को फर्टिलाइज्ड एग से दूर रखेगा. सो देयर इज नो चांसेस ऑफ अनदर स्पर्म एंटरिंग इन. ठीक है. सो नाउ ये हो गया. अब क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है, जब स्पर्म आके टच हो जाता है, तो मेम्ब्रेन क्या करती है, स्पर्म को एनवेलप कर लेती है. स्पर्म का जो हेड वाला पोर्शन था उसको एनवेलप कर लेती है, और जो स्पर्म का न्यूक्लियस था वो आ जाता है एग के साइटोप्लाज्म में. जो स्पर्म का न्यूक्लियस था वो आ जाता है एग के साइटोप्लाज्म में. ठीक है. सो द एग इज स्टिल इन द मियोसिस 1 कंप्लीट किया उसने. अगर आपको याद हो तो आपने एक पोलर बॉडी बना दी थी, फर्स्ट पोलर बॉडी. ओके. और सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है, जब फर्टिलाइजेशन होता है.
ओके तो यहां पे देखो मैंने आपको बताया था जेनेटिक मटेरियल फ्यूज नहीं हो रहा है अभी तक, खाली न्यूक्लियस अंदर एंटर हुआ है। स्पर्म ने पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस अपना दे दिया साइटोप्लाज्म के पास, बट अभी भी अगर आप देख रहे हो तो एग न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस दे डिफरेंट, दे हैव नॉट फ्यूज्ड येट। समझ में आ रहा है? सो एज सून एज दिस हैपेंस, दिस न्यूक्लियस अंडरगोज मियोसिस 2। ये न्यूक्लियस क्या करता है? मियोसिस 2 करता है, एंड it again forms one bigger nuclei or bigger cell and another small. ठीक है, तो ये जो phase, I'll put it down. One is going to be bigger, another is going to be small. So this is your ovum. It is still ovum because अभी ये दोनों fuse नहीं हुए, ठीक है, and this is the secondary polar body. This is the secondary polar body and this is the ovum. ठीक है, and once the ovum is formed, फिर क्या होगा? इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा. This is N, this is N, this is N, this is N. ठीक है, ये दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, 2N हो जाएगा, और फिर जाके क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा. ठीक है, अब मे बी इट्स गेटिंग क्लियर कि यार फर्टिलाइज स्पर्म एंटर हो गया, उसने अपना न्यूक्लियस दे दिया, बट न्यूक्लियस इज नॉट गेटिंग फ्यूज. द न्यूक्लियस ओनली गेट्स फ्यूज्ड व्हेन द सेल अंडरगोज मियोसिस 2, और फिर जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, जोना पेलुसिडा भी याद रखना, इट सॉलिडिफाइज. ठीक है, सो नाउ वी हैव द जाइगोट. जाइगोट बन गया. जाइगोट इज फॉर्म्ड एट द एम्पिलरी स्टमक जंक्शन. ओके, जाइगोट बन चुका है 2N. ठीक है, सी नाउ व्हाट हैपेंस इज इट वुड अंडरगो क्लीवेज. ओके, यहां पे क्लीवेज चालू हो जाएगा, डिवीजन चालू हो जाएगा. ओके, लेट्स पुट इट एज डिवीजन, सेल डिवीजन चालू होगा. इट वुड स्टार्ट क्लीविंग, इट वुड स्टार्ट डिवाइडिंग इनटू नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, तो 1 से 2 होगा. ओके, अब ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस में जो डिवीजन है दैट इज एसिंक्रोनस. एसिंक्रोनस, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज रोटेशनल क्लीवेज. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द रोटेशनल क्लीवेज. नाउ एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? तो इट्स नॉट लाइक कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से डिवीजन नहीं होता ह्यूमंस के अंदर. ह्यूमंस के अंदर जो डिवीजन का प्रोसेस है दैट इज वेरी स्लो एंड इट इज एसिंक्रोनस. अगर सिंक्रोनस होता तो क्या होता है कि 1 से 2, 2 से 4, बट यहां पे इस तरीके से नहीं. इट गोज लाइक 1 से 2, देन इट वुड बी लाइक 2 से 3. ठीक है, 3 से 4, ओके, 4 से 5, इस तरीके से डिवीजन होने वाला है. So this is 2N, this is let's say 2N, this is 2N, 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 ये सब सेल है, 3 सेल है. ठीक है, the cells would keep on dividing, keep on dividing, keep on dividing, and then we would reach to a stage जहां पे we would have, let's say, मैं यहां पे लिख देता हूं, there would be repetitive mitosis. क्या होने वाला है? Repetitive mitosis. ओके, एंड वी वुड रीच अ स्टेज जहां पे ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है इसके अंदर 16 सेल हो गए. कितने सेल हो गए? 16 सेल. ओके, ये जो सेल्स इन्हें क्या कहा जाता है? दे आर टर्म्ड एज ब्लास्टोमियर. क्या कहा जाता है? दे आर टर्म्ड एज ब्लास्टोमियर. द 16 सेल स्टेज. The 16 cell stage. The 16 cell stage is known as 16 cell मतलब कौन सा सेल? सेल को कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स. ओके, एंड दैट स्टेज इज नोन एज द मोरुला. इज नोन एज मोरुला स्टेज.
क्या कहा जाता है? मोरुला। ठीक है, डिवीजन और होता है, द नंबर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ये जो अंदर सेल्स है इन्हें ब्लास्टोमेट्स कहा जाता है। ठीक है, सो द नंबर वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके, 16 से इट कैन गो टू 32, 32 से 200, 200 से 300, 500, इस तरीके से नंबर बढ़ता जाएगा। ओके, एंड इट रीचेस अ स्टेज जहां पे इसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहा जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। ओके, I'll say the number as more than 100, more than 100 ब्लास्टोमियर्स। ये जो सेल्स है ना ब्लास्टोमेट्स कहा जाता है। तो ब्लास्टोमेट डिवाइड करते जाएंगे, मोरुला वाले स्टेज में 16 ब्लास्टोमेट्स थे, ब्लास्टोसिस्ट तक आते आते इट वुड इंक्रीज टू मोर देन 100 ब्लास्टोमेट्स। ठीक है, दिस इज ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं और इसे इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लास्टुला। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लास्टुला। ठीक है, सो वी हैव मोरुला, वी हैव ब्लास्टुला, इसके बाद आता है गैस्ट्रुला। ठीक है, और गैस्ट्रुला के बाद क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। गैस्ट्रुला के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। ठीक है, सो ब्लास्टुला तक पहुंच गए। अब ब्लास्टुला में आने के बाद क्या होता है? थोड़ा बहुत यहां पे चेंजेस आता है। ये जो अरेंजमेंट है सेल्स का, देयर इज सम चेंजेस इन द अरेंजमेंट। ओके, सो आई टॉक अबाउट इट। इज दिस क्लियर नाउ? सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज इन ह्यूमन द क्लीवेज और द डिवीजन इज गोइंग टू बी स्लो एंड एसिंक्रोनस, जिसे रोटेशनल क्लीवेज कहा जाता है। मतलब 1 से 2, 2 से 4 नहीं, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से डिवीजन चलेगा। And slowly and gradually we would reach to a number of, let's say, 16 cell stage, which is termed as morula. Okay, these cells are termed as blastomeres. Repetition चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, and we would reach to a stage जहां पे we would have more than 100 cells. The cells are the blastomeres, and that stage is known as the blastocyst or the blastula. Okay, एक और चीज अपन याद रख सकते हैं कि यार सिंगल सेल, एक सेल को अगर लेना, it doubles, उसको डबल होने में चाहिए 12 घंटे। इट टेक्स 12 आवर्स टू डबल फ्रॉम अ सिंगल सेल। इट वुड रिक्वायर 12 आवर्स टू डबल, मतलब 1 से 2 होने में उसे 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, सो ब्लास्टुला से आगे चलते हैं। ठीक है, सो नाउ ये जब डिवीजन चल रहा था उस टाइम पे द जाइगोट इज मूविंग फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब एम्पिलरी स्टमक जंक्शन से मूव करके वो आ रहा है कहां पे? वो आ रहा है यूट्रस की तरफ, क्योंकि यूट्रस में इम्प्लांटेशन होने वाला है ना। ठीक है, सो जो फर्टिलाइजेशन हुआ था एम्पिलरी स्टमक जंक्शन में, वहां से वो ट्यूब से मूव करता, बिकॉज मैंने बात की थी देयर आर सीलिया प्रेजेंट ना, तो सीलिया क्या करेगी? उसको पुश करेगा आगे की तरफ एंड इट वुड मूव एंड रीच दी यूट्रस। उस टाइम में डिवीजन भी चलता रहेगा, नंबर ऑफ सेल आर आल्सो गोइंग टू इंक्रीज। सो आई टॉक अबाउट द ब्लास्टुला। सो लेट्स से दिस इज ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला में थोड़ा बहुत सेल्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। देयर आर सम सेल्स दे वुड अरेंज एट द पेरिफेरी। Okay, and there would be some cells that would accumulate at one side, at one inner side. अंदर की तरफ वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जमा हो जाएगा इस तरीके से। We need to know that कि ये जो पोर्शन मैंने दिखाया ना, जो सेल है, दिस ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज द इनर मास सेल। दिस आर नोन एज द इनर मास सेल। ओके, और जो पेरिफेरी पे मैंने सेल्स दिखाए, दोज आर टर्म्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। दे आर टर्म्ड एज ट्रोफोब्लास्ट एंड देयर इज अ फ्लूइड, और जो कैविटी, दिस इज एन एम्प्टी स्पेस जहां पे फ्लूइड भरा हुआ है ना, तो दैट कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसेल। क्या कहा जाता है कैविटी को? ब्लास्टोसेल कहा जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन कहां होगा? एंडोमेट्रियम पे होगा ना, द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस, जो अपन ने कई बार बात करी थी, और तो कहीं होगा नहीं। ठीक है, सो ये जो सेल मास है दैट इज नोन एज द इनर मास सेल। ओके, जो अंदर की तरफ एक पर्टिकुलर जगह पे सेटल हो गया, और जो पेरिफेरी पे सेल्स अरेंज हो गए ना, वो ट्रोफोब्लास्ट है। और ट्रोफोब्लास्ट दे आर सिक्रेटिव। वी नीड टू रिमेंबर दे आर सिक्रेटिव।
तो ये जो फ्लूइड बना हुआ है ना यहाँ पे, दिस फ्लूइड इज ऑल्सो फाउंड बाय द ट्रोफोप्लास्ट, ठीक है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दे डू इज द मोमेंट दे रीच, लेट्स से दिस इज द व्हाट डू कॉल, दिस इज द एंडोमेट्रियम, ओके। तो द मोमेंट दे रीच द यूट्रस वाला रीजन, एंडोमेट्रियम के पास आते हैं ना, दे रिलीज अ केमिकल, they release the chemical and this chemical degrades the wall of the uterus, degrades endometrium। डिग्रेड इसलिए करना बिकॉज वो डिग्रेड होगा तभी तो जाके ये जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला अंदर इंप्लांट हो पाएगा, ब्लास्टोसिस अंदर इंप्लांट हो पाएगा ना, नहीं तो अटैच कैसे होगा, इट हैज टू गो इनसाइड। तो डिग्रेडेशन हो जाने के बाद यहां पे क्या हो जाएगा, लेट्स से थोड़ा सा ग्रूव क्रिएट हो गया, लेट्स से थोड़ा सा ग्रूव क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये ग्रूव जो है, इस ग्रूव के अंदर जो ब्लास्टुला है आके सेटल हो जाएगा, इस ग्रूव के अंदर आके ब्लास्टुला सेटल हो जाएगा, और जो एंडोमेट्रियम है वहां पे अब नए सेल्स बन जाएंगे जो इसको एनवेलप कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस था, दिस इज इम्प्लांटेशन। ये क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि यार जो ब्लास्टुला था दैट वाज मोर देन 100 सेल्स, ब्लास्टोमेयर्स वो आएगा, वो एंजाइम सिक्रीट करेगा जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम को डिग्रेड करेंगे, जिसकी वजह से यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ग्रू हो जाएगा, और फिर ये जो ब्लास्टुला था अंदर आके सेटल हो जाएगा और उसके ऊपर नया टिश्यू बन जाएगा बाय द एंडोमेट्रियम, ठीक है। सो अभी तक मैं टर्म यूज करा था एंडोमेट्रियम, दैट वाज द इनर वॉल ऑफ यूट्रस। द मोमेंट द endometrium receives or undergoes implantation, एक बार implantation हो गया एंडोमेट्रियम में, now we'll term the endometrium as decidua, it is termed as decidua, ठीक है। so if it is asked what is decidua, तो it is endometrium ही, but endometrium which has received the blastula, और एंडोमेट्रियम जहां पे क्या हो चुका है, इंप्लांटेशन हो चुका है, ठीक है। सो एंडोमेट्रियम में इंप्लांटेशन हो जाने के बाद विल टर्म द सरफेस एज डेसिडुआ। इज इट क्लियर, सिंपल एंड इजी। एंडोमेट्रियम में इंप्लांटेशन हो जाने के बाद उसी सेम सरफेस को वी टर्म इट एज डेसिडुआ, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। ठीक है, sometimes what happens is जो ब्लास्टुला होता है ना, इसके ऊपर वी हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ जोना पेलुसिडा एज वेल। क्योंकि जोना पेलुसिडा था ना उस टाइम पे एग के पास भी, तो यहां पे भी थोड़ा सा जोना पेलुसिडा होगा, ठीक है। और ये जोना पेलुसिडा कब डिग्रेड होगा, जब ट्रोफोप्लास्ट सिक्रीट करेंगे और जाके फिर अटैच हो जाएगा ये किससे, यूट्रस से, यूट्रिन वॉल पे। तो कभी कभी क्या होता है कि जोना पेलुसिडा ऑलरेडी डिग्रेड्स बिफोर गेटिंग इम्प्लांटेड, ओके। जोना पेलुसिडा डिग्रेड्स before reaching uterus। तो जब वो पहले ही डिग्रेड हो जाता है बिफोर रीचिंग द यूट्रस, व्हाट हैपेंस इज implantation takes place in fallopian tube। कहां पे होता है फिर, फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है। अगर जोना पेलुसिडा का लेयर डिग्रेड हो चुका है पहले ही, कब पहले, मतलब एम्पुलर स्टमक जंक्शन था वहीं पे डिग्रेड हो गया, तो क्या हो जाएगा, जब वो आगे की तरफ मूव करने लगेगा, ओके, तो वो इम्प्लांटेशन ट्यूब में हो जाएगा।
जिसकी वजह से इट इज नोन एज, दिस इज हार्मफुल, दिस इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है. ओके, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज ट्यूबल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है. सो इस केस में क्या कर सकते हैं, इधर यू हैव टू टर्मिनेट और यू हैव टू टेक दैट डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम द ट्यूब एंड प्लेस इट इनटू द फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड द ट्यूबल प्रेगनेंसी. इज इट क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड. So this was the whole implantation process. ठीक है, सो ट्रोफोब्लास्ट वाले स्टेज में आने के बाद इम्प्लांटेशन होने वाला है. ठीक है, तो अगर वी नीड टू नो, अगर स्टेजेस देखने कौन कौन से स्टेजेस आते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बिफोर द इम्प्लांटेशन. सो ऑब्वियसली द फर्स्ट कम्स द जाइगोट. ठीक है, जाइगोट के बाद जो स्टेज आएगा दैट इज द मोरुला. मोरुला के बाद जो स्टेज आएगा दैट इज ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद जो स्टेज आएगा दैट इज गैस्ट्रुला. और गैस्ट्रुला के बाद क्या होगा, तो गैस्ट्रुला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस. क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा. ओके, यहां पे एक ही सेल था, यहां पे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा. गैस्ट्रुला में आते आते cells would arrange in 3 germinal layers. The cell would arrange in 3 germinal layers. Okay, germinal layers आपको पता है कौन से 3 germinal layers होते हैं. So we have the mesoderm, then we have the ectoderm, और सबसे अंदर की तरफ जो होता है that is endoderm. ठीक है, तो ये 3 आपके जर्मिनल लेयर्स है जिनसे बाकी के बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन होने वाला है. ठीक है, तो गैस्ट्रुला वाले स्टेज में आते आते सेल्स तो काफी सारे बढ़ी जाएंगे, बट ऑब्वियसली सेल्स अपने आप को 3 लेयर्स में, 3 जर्मिनल लेयर्स में अरेंज कर लेंगे. द इनर मोस्ट इज गोइंग टू बी द एंडोडर्म, द मिडल इज द मेसोडर्म एंड द आउटर मोस्ट इज गोइंग टू बी द एक्टोडर्म. ठीक है, और उसके बाद क्या चालू हो जाएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस चालू हो जाएगा, मतलब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ a baby. This would result into the formation of a baby. Okay, so a baby would contain about, let's say, more than 2 trillion cells. It would contain about more than 2 trillion cells. So now just imagine, now just try to feel that कि यार we started with a single cell. और बेबी बनते 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 वी हैव कम अप टू मोर देन 2 ट्रिलियन सेल्स. सो देयर इज अ लॉट ऑफ माइटोसिस टेकिंग प्लेस. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ इफ इट इज आस्क्ड कि यार बेबी जो बना है उसका जेंडर कौन डिसाइड करता है, हु डिसाइड्स द जेंडर ऑफ द बेबी? सो व्हाट वुड यू सजेस्ट और व्हाट वुड यू आंसर? यू कैन पॉज द वीडियोस, गो थ्रू दिस कंटेंट, राइट इट डाउन. जर्मिनल लेयर्स भी मैंने यहां पे लिख दिए. ठीक है, so if it is asked who decides the gender of the baby, but obviously is the parents. ठीक है, पेरेंट्स डिसाइड करने वाले, बट it's not that way. The gender of the baby is going to be decided by the father. The father decides the gender of the baby because father के केस में there are sperms formed and the sperms are going to be X and Y. The sperms are going to be X and Y. और मदर के केस में जो एग बनेगा that is only going to be X. ठीक है, तो अब अगर ये वाला स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ फीमेल, अ गर्ल चाइल्ड. बट अगर ये वाला स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी मेल.
Because female में we have no varieties कि यार we have the egg which would only have the X chromosome, but males में there is a variety कि यार X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है. So we need to know that the gender of the baby is going to be decided by the father, not the mother. ठीक है? One more thing is a lot of questions are asked every time कि sir twins कैसे बनते हैं? How are twins formed? So twins की अगर बात करते हैं, we have two types of twins. Identical twins. वो जुड़वा मूवी देखी होगी ना, तो जुड़वा मूवी में we have two same faces. वरुण धवन वाला, सलमान खान वाला. ओके, सो अगर फेस सेम है तो उसे आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाएगा, और अगर फेस सेम नहीं है दोस आर टर्म्ड एज अनआइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल. ठीक है, सो आइडेंटिकल ट्विंस मतलब सलमान खान, और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस मतलब दे आर नॉट मैचिंग विथ ईच अदर. द बायोलॉजिकल टर्म इज dizygotic twins and this is monozygotic twins. ठीक है, तो नाम से आपको पता चला मोनोजाइगोट और डाइजाइगोट. तो अगर आइडेंटिकल ट्विंस बनने तो किस तरीके से बनने वाले आइडेंटिकल ट्विंस? So for the formation of identical twins, let's say we made a zygote था. Zygote किस में split होता है? It divides into two. ठीक है. Now let's say due to some genetic abnormality, अगर ये दो जो cells बने थे ये split हो जाते हैं. They split, they do not remain together. क्योंकि इससे पहले मैंने क्या बताया कि the cells they remain together. ठीक है, बट यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि split हो गया. This is genetic abnormality. तो जब अगर स्प्लिट हो जाते हैं तो यहां से एक इंडिविजुअल बनेगा और यहां से दूसरा इंडिविजुअल बनेगा, बिकॉज दे आर कमिंग अप फ्रॉम द सेम जाइगोट. ये दोनों जो इंडिविजुअल्स या दोनों बेबी जो बनेंगे दे वुड लुक आइडेंटिकल, क्योंकि दे शेयर, बिकॉज दे शेयर सेम जीन्स, बिकॉज दे आर कमिंग अप फ्रॉम द सिंगल जाइगोट. ठीक है, अगर डाइजाइगोट की बात करें तो दो जाइगोट बन रहे हैं. दो जाइगोट कैसे बन सकते हैं? तो दो जाइगोट बन सकते हैं अगर इफ ईच ओवरी रिलीजेस एग एट द सेम टाइम. ईच ओवरी रिलीजेस एग एट द सेम टाइम. दिस इज ऑल्सो एबनॉर्मलिटी. दिस इज ऑल्सो एबनॉर्मलिटी ना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ओवरी दो ओवरी है तो उसमें से एक ही ओवरी एग रिलीज करेगी, नॉट बोथ दी ओवरीज एट द सेम टाइम. पर अगर इफ ईच ओवरी रिलीजेस एग एट द सेम टाइम तो क्या होगा? तो अब क्या होगा? वी वुड हैव टू एग्स. स्पर्म तो काफी सारे होते हैं, सो ईच ऑफ द स्पर्म वुड फर्टिलाइज ईच ऑफ द एग. और जब दोनों एक दूसरे को फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा? यहां से दोनों जो इंडिविजुअल्स बनेंगे they would be different because they do not share same genes and they would look different. So this is a dizygotic twin and this is a monozygotic twin. ठीक है, I hope this is clear. So go through the topic of implantation first from the video and then refer your textbook. ठीक है, एक और बात मैं बता देता हूं आपको कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे कि यार व्हाट वुड बी द इंक्रीज ऑफ द साइज और व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन साइज ऑफ द मोरुला और द ब्लास्टुला. ओके, अगर मोरुला और ब्लास्टुला की बात करते हैं, दोनों में से बड़ा कौन होगा? विच ऑफ देम वुड बी बिगर, मोरुला या फिर ब्लास्टुला? ठीक है, तो यार अपन सोचे कि मोरुला के पास कितना सेल है, कितना ब्लास्टोमियर है, तो यहाँ पे 16 ब्लास्टोमियर्स है. करेक्ट है ना, 16. ओके, और यहाँ पे कितना ब्लास्टोमियर्स है? यहाँ पे लेट्स से मैंने बोला था मोर देन 100. ठीक है, तो यार यहाँ पे 16 सेल है, यहाँ पे 100 सेल है, तो बट ऑब्वियसली ब्लास्टुला बड़ा हो गया. ठीक है, बट दैट इज नॉट द वे. यहां पे जो साइज है वो सेम रहने वाली है. ठीक है, इंक्रीज हो रहा है सेल के नंबर में, बट दिस वुड लीड टू दी कॉम्पैक्टनेस ऑफ द
structure. This will lead to the compactness of the structure. आप समझ रहे हो? मतलब अगर compactness की बात करते हैं तो this is less compact and this one is more compact. क्यों more compact? Because it has more number of blastomeres and it has less number of blastomeres. But size की बात करते हैं, size is same. Size is same. Is it clear? So don't get fooled by such type of question कि मोरला ब्लास्टोमा में से बड़ा कौन है? दोनों सेम रहने वाले, because the compactness is increasing, not the size is increasing. ठीक है? So I hope you got everything what I said. So go to the lecture. So go to the textbook as well. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. If you do not have the textbooks, get the PDF downloaded. Okay, आप नोट्स बनाना भी चालू कर दो. ठीक है? So I'll keep this much for this lecture. कोई डाउट हो, you drop me the message. I'll solve it in the video or I'll drop you the message as well. ठीक है? So we'll keep this much for the lecture. Okay, चलो.